So today we are going to discuss directly with you. This is the Ayurveda, the way forward. In the last class we have discussed about the pharmacovigilance and how the pharmacovigilance is working and what are all these consequences which are responsible for the safety of the Ayurvedic medicines, and those Ayurvedic medicines are for betterment of the health, and what are the possibilities where one may do some wrong, and that is the duty of a person belonging to the program of the pharmacovigilance to get rid of all. Luckily I got a class of today also, and I thought I should cover a scenario where you must be getting the confidence. Of course you are in the confidence because you have completed your BMS. Now you are in the first 4 premium institutions for your postgraduate studies. But still there are need of awareness. And this I perceived when on Saturday I was with you, and when I was raising some questions, and I am getting the answers also from your class, nice answers, but that should be at the level of the institute, reflecting the institute from where you are. With this reason, I am with this presentation before you for the 40-45 minutes. चलिए बात करते हैं Ayurveda, the way forward. In fact, this is the presentation in a postgraduate curriculum program, that is the reorientation program. You also have passed for the 14 days, right? I was invited somewhere else, and I delivered this. I thought, why not it should be before you also, right? So see here, what is the first slide? Ayurveda, you can read it or not? अगर आप पढ़ सकते हो जरा जोर से पढ़िए इसे. How Ayurveda can power the development of a global health culture? Yes. How Ayurveda can power the development of a global health culture, right? इसका राइटर है Dr. Ram Manohar, P. Ram Manohar, who is from Kerala. He is not limited to the Kerala, but just I am asking, आप में से कोई केरल से है ना? कौन है? Do you know about the Dr. P. Ram Manohar? Certainly not, or certainly yes. No. This is challenge for Dr. Ram Manohar. Okay, you have to create your ability more so that your own state people to know about you. I mean, I am addressing Dr. P. Ram Manohar. Dr. P. Ram Manohar is a name nowadays who is just a synonym everywhere. He is representing Ayurveda, whether it is the IITs or the Global Summit or the international platform. Dr. P. Ram Manohar from Amrita Institute, Kochi, right? Earlier he was at Coimbatore, and he visited this Banaras University, but in our old department. I invited him and he accepted my invitation to deliver a lecture. So you just get the name written here, Dr. P. Ram Manohar, and go through his deliberations and his work. Basically, he is from the Dragoon department. Anyone of the Dragoon here in this class? Yes, sir. Okay. So he is basically from the Dragoon, right? इसकी कहानी अलग है राम मनोहर की. बताने लगूंगा तो आपको लगेगा कि ऐसा है. बहुत पहले 20 साल पहले राम मनोहर ने एक पेपर प्रिंट किया प्रोफेसर आर एस सिंह थे, और प्रोफेसर आर एस सिंह ने उनको इन्वाइट किया कि आप पीजी करने आए. इस प्रोडक्ट ऑफ द कोयम्बटूर कॉलेज. एक स्टूडेंट से इतना प्रभावित हुए थे. आज के 25-30 साल पहले प्रोफेसर आर एस सिंह जब वो मंच से उतरा बीएमएस फाइनल ईयर पर लड़का. कौन? बीएमएस फाइनल ईयर पर लड़का, नेमली डॉक्टर पी. राम मनोहर. When he down from the podium after presenting a paper, Professor R.S. Singh called him
in the deep south, and asked him whether you like to do PhD with me. Who asked? Professor Amar Singh. That is the virtue of a student. That is the quality of a student. And he asked Ram Manohar, okay, how much duration it will take? Sir said, 3 years. Well, I have no time. I have no time to spend 3 years. But after some time, 5-6 years later, Ram Manohar realized that these degrees are important. Degrees are important. So he did PhD from some college in Karnataka in the Jaguar subject. But he is now very busy, traveling a lot. Just 3 days back, he was in IIT Roorkee in a conference of the spirituality and the health Ayurveda, like that. You can follow him, and he is really servicing Ayurveda very well. And luckily, I have shared podium with him at many platforms, and we are having a very good rapport. Just I put in his papers somehow in one publications, and I demanded it. He is collaborating with the USA and the studies with all kinds of the rheumatoid arthritis, and some scientists found me. He is a good researcher of the clinical field and in the field of the pharmacology, right? So this is the write-up of the Ram Manohar, and it is under the Vivekananda Foundation. And see what our Honorable Prime Minister is talking. Bridging Ayurveda into the mainstream is the ancient system equipped to meet the modern challenges of health and disease. डेट आपको समझ में आ रही है? आपको इधर देखिए डेट समझ में आ रही है तो उनकी डेट बताइए. छोटी छोटी है. What are the dates? नहीं आ रही. चलो आप बताओ क्या डेट है? इधर की और उधर एक वर्ड आया फाउंडेशन का. नेशनल फाउंडेशन की डेट है February 10, 2023. February 10, 2023 and the second one है December 21. December 21, 22 Goa. What Ayurveda Congress? Goa. So this is the scenario of Ayurveda. And these two pictures, what I am showing you, are having correlation. They are interlinked with each other. How? And just I am connecting here this global summit of the 17th and the 18th August too. And if you see in a very broader way, then you can realize what is the status of Ayurveda and what is supposed from you to perform in which direction, right? It is not like that कि आप यहाँ पर हो 3 साल के लिए पीजी करो अपने अपने डिसिप्लिन में और एक बढ़िया सा डिजर्टेशन जमा करो जिसके एक्नॉलेजमेंट में अपने पेरेंट्स की वंदना करो, गुरु जी की वंदना करो, अपने उन फ्रेंड्स का नाम बिल्कुल मत लिखो जो तुम्हारा सहयोग नहीं किए थे लेकिन मजबूरी में लिखना भी पड़ सकता है ना. यानी हम तो एक डिजर्टेशन के लिए आप नहीं है. यू आर नॉट हियर फॉर द डिजर्टेशन. बी क्लियर. You are not here for just passing the 3-year time and taking the salary. No, not at all. You are here for 3 years to serve the group, and you have to realize it. What you have to do. You are not for the purpose of degree, and that I want to make you understand in the next 30-35 minutes. Next, please. Links are already here. You can click and you can go through all the details. How you define that? Classical Ayurveda, contemporary Ayurveda, American Ayurveda at NIH USA, Ayurveda at MHRA European Union, Ayurveda at Australia, Ayurveda at Arab Africa, etc. इतने तरीके का आयुर्वेद आप जानते हैं? एक हमको अष्टांग आयुर्वेद जानते हैं, फिर एक हम षोडशांग आयुर्वेद जानते हैं. षोडशांग आयुर्वेद जानते हैं कि नहीं जानते हैं? Who framed षोडशांग आयुर्वेद? Acharya P. Vishal, षोडशांग Ayurveda, right? So what kind of Ayurveda I am talking? Vikram Ayurveda, Vasant Lord Ayurveda, हाँ? और एक कौन है और अच्छा राइटर? चोपड़ा, नीरज चोपड़ा
चोपड़ा नहीं हो जुबिलेंस रोड वाला एक और बहुत अच्छे राइटर हैं जस्ट आई एम सीइंग हिज नेम नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द शिवकेड़ा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शिवकेड़ा हां yes yeah so everyone is talking about their own आयुर्वेद यहाँ भी बहुत सारे लोग आयुर्वेद अपने अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं करिए वहाँ भी संभाषा हुई थी और उस संभाषा में सभी लोगों ने रस क्या शुरू में 6 मान लिए गए थे क्या कहाँ से शुरू हुए एक रस से शुरू हुए थे फिर किस पर आकर सेटल हो गए तो आप कोई भी आयुर्वेद मान करके चलिए लेकिन ठीक पर आइए व्हाट इज दिस क्लासिकल आयुर्वेदा व्हेन आई से क्लासिकल आयुर्वेदा आई लिटरली मींस आयुर्वेदा ऑफ द Bharatiya Laboratory and all the classics right. And you know the still first authoritative textbooks of Ayurveda? Have you heard about it? Anyone of you have heard about it or not? नहीं सुना है तो कुछ लीजिए Schedule first में 55 books listed हैं वो आपको पता होना चाहिए उन्हीं को सरकार authoritative textbooks of Ayurveda कहती है आपसे अगर पूछा जाए ना रेफरेंस बताइए तो आपको रेफरेंस कौन सा मान्य है ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक ऑफ आयुर्वेदा कहाँ लिखी हुई है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 नेट पर देख लीजिएगा उसमें भी ढेर सारी पॉलिटिक्स होती है साउथ इंडिया के लोग कहते हैं कि हमारी किताबें नहीं है उसमें ऐड करिए एक सहयोग नहीं है उसमें वो उसमें ऐड करने की मांग करते हैं गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू ऑल दैट अभी अगर याद आ जाए फसाई में भी शेड्यूल ए आया है जिसमें कि आयुर्वेद की ढेर सारी किताबें दी गई हैं जिसमें आप बात चल रही है कि क्या ऐड किया जाए क्या डिलीट किया जाए पर एक चीज़ आप ये समझिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट यू थिंक इज राइट बट व्हाट यू थिंक इज नॉट ऑलवेज लीगल यू गॉट इट द डिफरेंस व्हाट यू थिंक इज वेरी राइट but what you think it may not be always legally an authorized sentence because in the laws in the eyes of law that is only authoritative which is published by the government of the country and here is a list of Ayurvedic books known as authoritative textbooks of Ayurveda that has been published into the schedule first of the Drug and Cosmetic Act 1940 right कहीं भी अगर लीगल बात आती है कोई भी क्वेश्चन आता है किसी फॉर्मूले पर आता है कहीं भी किसी भी चीज़ पर आता है तो सीधे कोर्ट में ये होता है कि दिस बुक इज नोटिफाइड अंडर द ऑथेंटिकेटेड टेक्स्ट बुक्स ऑफ आयुर्वेदा आप कोई भी बुक कोई भी किताब उठा करके कोर्ट में नहीं जा सकते हैं एमएससी में नहीं जा सकते हैं राइट तो ये इसका महत्व होता है फाइन तो क्लासिकल आयुर्वेदा वहाँ है जो 54 किताबों में लिखा गया है लकड़ी वहाँ पर आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी ऑफ इंडिया आयुर्वेदिक फार्मेकोलॉजी ऑफ इंडिया को भी ऐड कर दिया गया बाकी सारी पुरानी किताबें हैं चरक संहिता से लेकर के रसधारणी फाइन ओके व्हाट आई मीन बाय द कंटेम्परेरी आयुर्वेदा कंटेम्परेरी आयुर्वेदा मीन व्हेन देयर इज इनपुट ऑफ साइंस व्हेन देयर इज इनपुट ऑफ रिसर्चेस ऑफ ICMR when there are the input of researchers of CSIR when there are the input of researchers of the Department of Biology when there is the input of researchers of the Department of Physics in the structural of the person when there is the input of the Department of Chemistry right when there is the input of Department of Geology biotechnology all these things because see what happens चरक संहिता there is a प्रतिसंस्कार in सुश्रुत संहिता there is a प्रतिसंस्कार in event स्टाम हृदय there is a प्रतिसंस्कार in every book even the Sarandhar Samhita there is a commentaries those nowadays commentaries of the last 50 years of the last 50 you can extend up to the 1930 when Chopra committee was formed right and then I think you are knowing about the Chopra committee Hathi committee Udappa committee सब पढ़ के आए हो ठीक है तो जब ये फॉर्म हुआ कर्नल आर.एन. चोपड़ा के वहाँ से छोड़ दीजिए लेकिन पिछले 50 साल में जो भी साइंटिफिक रिसर्च हुई है दोज हैड वैलिडेटेड द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स इन ए ट्रू सेंस इन ए वेरी रियल स्पिरिट एंड दैट हैज बीन accommodated into your knowledge base with the Ayurveda that is what contemporary ये क्या था
आप कोई भी उदाहरण उठा करके देखिए, पंचवीं कसाय कल्पना सप्तमी कसाय कल्पना तक गई। हम रसायन के उदाहरण उठाएं तो क्या कुछ सबसे पहले जिस तरीके से रस समुच्चय में रस प्रकाश सुधाकर में लिखे गए वैसे ही रसायनों में लिखा हुआ है? नो, नॉट एट ऑल। तो ऑलवेज देयर इज अ डेवलपमेंट एज पर द नॉलेज एग्जिस्टिंग एट द डे। आज की तारीख में जो विज्ञान ज्ञान है उसके अनुरूप आयुर्वेद को ढालना, आयुर्वेद को युगानुरूप बनाना, वो क्या है? कंटेम्परेरी है, राइट? नेक्स्ट क्या है? आयुर्वेदा एट NIH USA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। तो सबसे बड़ी बॉडी है ये, कहीं भी होता है तो वो कहते हैं कि CDC की डायरेक्टिव्स क्या है किसी भी डिजीज पे, और इसके भी 20-25 ब्रांचेज है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज। आप NIH की साइट पर जाइए और जब क्लिक करिए उनके सारे ऑफिस आएंगे। एक ऑफिस के बारे में मैंने बताया था लास्ट, क्या है? NIH की, yes, last bench. What is that office? What I discussed in the Saturday, the name and few change of the NIH unit. Yeah, let me know fast. Huh? Integrated, fine, but good. But what is the full form of that center? NCCIH. NCCIH. National Institute of Complementary and Integrated Health. NCCIH. Fine. That is the branch of NIH. जैसे है ना यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ढेर सारी ब्रांच है। ICMR के 10 यूनिट है, CSIR के 36 यूनिट है। इसमें लखनऊ का है कोई यहाँ बैठा हुआ? CDR है, एक ही थोड़ा ना CDR है। क्वेश्चन तो ये था कि लखनऊ में कितनी CSIR के इंस्टीट्यूट्स हैं, बताओ। अब बताओ, हाउ मेनी इंस्टीट्यूट्स ऑफ CSIR इन वन सिटी? लखनऊ सबसे ज़्यादा हैं, 4 हैं। CMAP, CDRI, NBRI और ITRC, 4 लेबोरेटरीज हैं CSIR के लखनऊ में। एक साल में इतनी ज़्यादा CSIR की लेबोरेटरीज नहीं है। एक भावनगर में, एक हैदराबाद में, चेन्नई में, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, फिजिक्स लेबोरेटरी दिल्ली में है, केमिस्ट्री लेबोरेटरी पुणे में है, और सब में आयुर्वेद में काम हो रहा है, you know. So that is the NIH and NCCIH. Where the Ayurveda at MHRA EU, Ministry of Health and Regulatory Affairs, European Union की, ठीक है? European Union is, you understood very well? ये नहीं समझते हैं। यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं? अब मैं GS की क्लास नहीं लूँगा। यूरोपियन यूनियन, you just say, you try to understand, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उनका एक यूनियन है। जैसे कि ब्रिक्स का नाम सुना ना? अभी उसमें नए देश आ रहे हैं ना, सार्क का नाम सुना है ना, बिम्स्टेक का नाम सुना है ना, और नहीं सुना हो तो जाकर पढ़ लो, मैं बताने नहीं जा रहा क्योंकि मुझे 1 घंटे में इसको पूरा करना है, राइट? तो these are the association. The European Union is the association where the European countries are under the cooperation, collaboration to promote their own interest, right? Fine. तो वहाँ भी आयुर्वेदा की डिफिनेशन है, EU Directive 2001, EU Directive 2004 and MLX 299, MLX 307. ये मैं किसी चिड़िया का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी फिल्मों का नाम ले रहा हूँ, right? All these are the government notifications, and if you search, you will get. Here it is given, if any herbal medicine is in the market of Europe since last 15 years, no adverse effect has been reported, that may be said. The 30-year THMPD guidelines, many things are there, and this is you who should know about it. Again, I am saying you are not here for one dissertation. You are here in the Banaras Hind University, in the campus of the Banaras Hind University, or in the PG study all across the country, anywhere. You should be aware. What is the theme of Ayurveda going on? Ayurveda is not limited to the only your 4 papers of the final year. I am hitting continuously today on your objectives of the PG course, right? You are not here to just pass the 4 papers of the final year and 1 dissertation in your hand with dedication to your loving and dear one, right? Ayurveda in Australia, the best country. The best country who really rationalized the practice of Ayurveda. This is the only country which has permitted the manufacturing of Ayurveda medicine in their own land. आप यूरोप में आयुर्वेदिक मेडिसिन की फैक्ट्री नहीं लगा सकते,
अमेरिका में नहीं लगा सकते, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्री है जहां पर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन बना सकते हैं। उसके लिए आपको रेगुलेशन देना होगा, TGA से। व्हाट इज TGA? थेरापेटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे हर मंत्रालय का नाम होता है ना, कुछ दिनों तक हम लोगों के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नाम क्या था? MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फिर बदल के क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और हमारी मिनिस्ट्री का क्या नाम था? मिनिस्ट्री ऑफ ISM&H, डिपार्टमेंट ऑफ ISM&H। फिर वो बदल के क्या हो गया? डिपार्टमेंट ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो नाम बदलता रहता है, नाम में बहुत कुछ होता है, राइट? एक नहीं कि नाम में कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है। सो सी अभी क्या हुआ चंद्रयान में? नाम ही था ना, शिव शक्ति K-1 थे 2019 में, सोमनाथ है इस समय, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपका तो नाम ही चंद्र है, सोमनाथ से आप, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, आयुर्वेद है अरब अफ्रीका। क्या आप समझते हैं आयुर्वेद है इन जगहों पे कि नहीं है? आप एक थोड़ा समय निकालिए और एक ग्लोबल आर्गुमेंटिव आयुर्वेद है, उस पर जाइए। आपको 10 वीडियो मिलेंगे, हर एक कंट्री में क्या आयुर्वेद है, कैसे है और कितना है, राइट? आयुर्वेदा इन अरब, आयुर्वेदा इन अफ्रीका, आयुर्वेदा इन ऑल these things you get a lot of things there, right? And this is the scenario of Ayurveda. You have to work for Ayurveda, not only for India, but you have to work that Ayurveda which is serving the South Pole, North Pole, Antarctica, Australia, all the 5 continents, and even all the 7 continents, right? ये दिमाग में लेके चलिए, तब आपको बहुत अच्छा कर पाएंगे। फिर आप सोचते हैं कि हम क्यों पढ़े आयुर्वेद, बड़ी भारी समस्या है। लेकिन अब आप तो BMS कर चुके हैं, आप ऐसा सोचते हैं क्या? अभी भी नहीं ना? हाँ, नहीं सोचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको नौकरियां कहाँ है, इसको क्लिक कर लीजिए। ये भारत सरकार का पोर्टल है, ये बताता है कि आयुर्वेद वालों को कहाँ नौकरी मिलेगी। इस लिंक पर क्लिक करिए, NHP नेशनल हेल्थ पोर्टल, और ये पूरा कैरियर ग्रोथ आपका दिया हुआ है, द होल योर कैरियर ग्रोथ, वेयर यू कैन सर्व विद एन आयुर्वेदिक क्वालिफिकेशन, इट इज रिटन वेरी मच हियर। गो टू द स्क्रीन, राइट? नेक्स्ट how Ayurveda clinics are different from other therapies? 5 साल तो यही पढ़ाई, सब टीचर्स ने आपको यही बताया है, अप्लाई भी किया होगा। ये क्या? होलिस्टिक ह्यूमन अप्रोच, देन डिजीज स्पेसिफिक अप्रोच, कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच, सप्लीमेंट्री अप्रोच, एडजेंट अप्रोच, अल्टरनेटिव अप्रोच। क्या मतलब हुआ इसका? क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, एक तो आयुर्वेद विश्व में किस रूप में जाना जा रहा है, ये स्लाइड ये बताने की कोशिश कर रही है। दिस स्लाइड इज ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यू ऑल इन विच फॉर्म आयुर्वेदा इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एट ग्लोबल लेवल। समवेयर इट इज कंप्लीट known due to its holistic approach, almost everywhere. Then disease specific approach, एक पर्टिकुलर डिजीज है, पेट की बीमारी है, आयुर्वेद से ठीक होनी, इसलिए भी लोग आते हैं। आयुर्वेद में मन, आत्मा, इंद्रिय संपूर्ण से होलिस्टिक अप्रोच है, साइक है, डिजीज है, सब कुछ ठीक होता है, उसके लिए भी आयुर्वेद में आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, साथ में कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी हो रही है, थोड़ी आयुर्वेदिक दवाएं दी, वेलनेस के स्पीड करने के लिए, पेन कम करने वाली नहीं, फीलिंग ऑफ वेलनेस, कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मेन रोग में साथ दे रही है, दोनों एक साथ चल रही है, राइट? वहां जैसे कि आपको एक टीबी की दवा दी जा रही है, पूरा कॉम्बिनेशन, साथ में आपको 64 विटामिन खिलाई जा रही है, राइट? दैट इज वन अप्रोच। एंड देन एडजेंट अप्रोच, साथ साथ ये भी उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अनुपान वाली बात आ जाती है। और अल्टरनेटिव नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मॉडर्न की दवा साथ में नहीं, अकेले खाली आयुर्वेद। तो इन कारणों से आयुर्वेद क्लिनिक्स को पीपल आर विलिंग टू नो, एंड दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम हर स्लाइड के बाद आपका कर्तव्य बोध कराएंगे। क्या कराएंगे? कर्तव्य बोध, कि आप किस लिए यहाँ पर हैं, आप किस लिए यहाँ पर हैं। यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ, you can work from holistic to alternative, and that is not possible by sitting in the class of a teacher. That is not possible by doing your 24-hour duty in your hospital. That is only possible to go altruistically. That is the awareness and your self-studies of all across literature available to you, right from the Central Library of the Banaras University. क्या नाम है सेंट्रल लाइब्रेरी का? तो यहाँ की यूजी है, जरा बताएं। सयाजीराव गायकवाड़। बहुत शाबाश, आपके उन्होंने दिल जीत लिया, लेकिन एक बाकी सब चुप नहीं, इसको करूँगा। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक। स्वतंत्रता भवन के सामने किसकी स्टेच्यू है? स्वतंत्रता भवन के गेट पर जाने पर किसका स्टेच्यू है? मालवीय जी का तो अंदर है। मैंने जो पूछा है बस वो सुनो, इधर उधर बकाओ मत। इस सवाल पर डिसाइड हुआ था मिस्टर एलिक्सर जब कभी एक साथ हुआ करता था और फाइनल राउंड चल रहा था पूरा। ये बात होगी 2010-11 की, कंपटीशन में सब लोग एक साथ थे। पुराने लोग जानते होंगे आयुष प्रज्ञा शायद साल होने जा रही है क्या, तो तब एलिक्सर होता था, एक साथ कंबाइंड फैकल्टी का कंबाइंड होता था। तो फाइनल राउंड चल रहा था और हमको थोड़ी सी भूमिकाएं हमेशा मिलती थी और हमने धीरे धीरे अपना रिटायरमेंट ले लिए, क्योंकि मुझे लगा कि अब स्पेस दूसरों को देना चाहिए, इसलिए हम हर जगह से सेल्फ विड्रॉ कर लिए अपने आप को। तो बहुत सारा काम हम लोग किया करते थे। तो हमको एक तरह से परमानेंट जज हुआ करते थे कई सारे इवेंट्स में, डिबेट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मिस्टर और मिस इलेक्शन के चयन में कई राउंड हो चलता था। तो फाइनल में मैंने यही सवाल पूछ दिया था कि अभी स्वतंत्रता भवन में सामने स्टेच्यू किसका है? जवाब आया मालवीय जी, नहीं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। तो आप अपने दिमाग को अगर खुला रखेंगे, आते जाते देखते रहेंगे कि कहाँ क्या है, तो आप नोटिस करते रहेंगे। शुभमस्तु शिवमस्तु मंगलमस्तु कहाँ लिखा हुआ है इस यूनिवर्सिटी में? बताओ। शुभमस्तु शिवमस्तु मंगलमस्तु बहुत प्रोमिनेंट वर्ड्स में लिखा हुआ है इसी यूनिवर्सिटी में। कहाँ लिखा हुआ है? शुभमस्तु शिवमस्तु मंगलमस्तु मदन मोहन मालवीयो, उनका सिग्नेचर है संस्कृत में। कहाँ? जी नहीं, मालवीय भवन पर नहीं है। 98% लोग ऐसे ही उत्तर देंगे कि मालवीय भवन पर है। अब इसके लिए आपको जो MCQ बनाते हैं ना हमारे जैसे मास्टर, वही पसीना छुड़ाते हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर पर सीधे गेट पे जाने पर दाएं साइड में लिखा हुआ है। ये ताम्रपत्र में लिख करके पूरे काशी विश्वनाथ मंदिर की महत्ता ताम्रपत्र पर लिख करके इस मंदिर के नींव पर डाली गई है। ठीक है, आगे बढ़े। 20 सेकंड का रिलैक्सेशन हो गया ना। तो ये आपको तैयार करना है अल्टरनेटिव अप्रोच से होलिस्टिक अप्रोच से, और वो तभी आएगा जब आप खुद को हॉस्पिटल की ड्यूटीज और टीचिंग क्लासेस से अपार्ट बियॉन्ड सोचेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग में जाएंगे, यू कैन कवर। और ये पढ़ लीजिएगा, लिंक यहाँ पर जो है एडिट पढ़िए तो आप में से कोई क्या है हेडिंग इसकी? Medicalization and Ayurveda, the need for the मेडिकलाइजेशन ऑफ आयुर्वेद balance in global health systems. प्लूरल सिस्टम। आयुर्वेद में आपको हर चीज को लाना होगा। फाइन, गो थ्रू दिस पेपर, क्लिक इट एंड यू विल गेट द फुल। नेक्स्ट। अब कोई भी काम करना है तो बिना दवा के थोड़े हो जाएगा। अभी योग से सब कुछ थोड़े होगा, या मंत्र चिकित्सा से थोड़े हो जाएगा, है ना? मेडिसिन चाहिए ना, किस क्वालिटी की मेडिसिन चाहिए? Which kind of medicine you need? Spurious, hereditary, misbranded, or quality safe, efficacious? Which you will prefer? Or commission, giving larger commission, larger, but I am on camera, I know I am on camera. Standard classical. Standard, Classical. right? Not only the classical, give space for the proprietary interpretation too. It means you need quality, safe, efficacious, Ayurvedic classical medicines as well as Ayurvedic patent and proprietary medicine.
as medicine, it is available as a dietary supplement, as a medicinal food, as a functional food, as nutraceutical, and as cosmos. Meat वैसा नहीं. इसका WhatsApp हफ्ते में 3 बार भरता है कि मार्केट ऑफ कॉस्मेटिक्स इन यूरोप, मार्केट ऑफ कॉस्मेटिक्स इन साउथ अफ्रीका, मार्केट ऑफ हर्बल कॉस्मेटिक्स इन ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ये कभी रिस्पॉन्स नहीं करती है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. रिस्पॉन्स करने के लिए मैं इसको याद दिलाता रहता हूँ कि तुम्हारी ड्रग का कितना काम होने वाला है. राइट, अभी इसका साइनेप्टिक यूज कमेटी में गई और तनासी क्रीम और तनासी बटी सुन करके उन्होंने कहा बड़ा अच्छा लगा. एंड सी इंश्योर्ड वेल बिकॉज सी रिहर्स, इसने रिहर्सल किया, इसने मॉक इंटरव्यू दिया था, मॉक क्वेश्चंस. आप कहीं भी सफल होना चाहते हैं, आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो अपने आप के सामने एक क्वेश्चन बैठा लीजिए और अपने आप को आंसर करने वाला बैठा लीजिए कि हमको क्या पूछा जाएगा. तो आपको एक राज की बात बताते चलिए, लेकिन वो इंटरव्यू लेक्चरर वाले में नहीं होता, बड़े वाले में. आप अपने इंटरव्यू को डिसाइड कर सकते हैं. यू कैन डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन योर इंटेलिजेंस. सबसे बड़ी बात आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ, जस्ट इन 1 minute. You expert is asking question, and if you are enough expert, then you will answer that where there will be next question by the expert, right? And then you answer the next question, and the whole interview will be as per your wish, and you will be decided, right? तो ये बहुत बड़ी स्किल है कि हम वो जवाब दें तो अगला हमसे यही पूछेगा, यही सुनिए. साइन अप कमेटी कि हमें ये पूछा जाएगा, हमें ये बोलना है. जब हम ये बोलेंगे ये सवाल है. और ये कैसे आता है? रिहर्सल से आता है. ड्रीम में नहीं आता. नेक्स्ट, ये इस बार आगे तो ये देखिए मार्केट साइज है. माय गॉड, कितनी जा रही है, कितना इंक्रीज हो रहा है? 15.6%. तो पूरा का पूरा आयुर्वेदिक बिजनेस ऑफ मेडिसिन ऑफ आयुर्वेदा इज बूम. एंड विद द COPP, आप COPP जान चुके हैं क्या है? यस, आज रिपीट करने की जरूरत होती है ना. व्हाट इज COPP? या आज ही व्हाट इज COPP? It decides all the Ayurvedic references. COPP, what is COPP? Pharmaceutical product. Yes, certificate of pharmaceutical product issued by CDSC. Right? तो ये पूरा आपका बिजनेस है. चंद्रयान 3, everyone is very happy. Yes. शिव शक्ति, everyone is happy. Everyone is very happy. International Year of Millets, everyone is very happy. What is the idea behind this happiness? Why we are happy? Yes, it is self, right? It is the Indian culture. Yes, millets are the Indian product. But why we are happy about this? Because here is the business. You know, with the Chandrayaan 3 success, the business of the Indian space club is 1 lakh crore thousand. या आज की न्यूज है, आज के समाचार पत्रों में न्यूज पूरी कैलकुलेट करके आई है कि इतना इंडिया का बिजनेस बढ़ गया. स्पेस सेंटर से इतनी चीजें लॉन्च होंगी, इतने लाखों लाख करोड़ रुपए. और मिलेट्स में क्या है? सबको ऐसे ही मोदी की स्केल में थोड़े खिला रहे हैं, उसमें भी पैसा है. योग में क्या था? योग पूरे मार्केट में गया, पूरे वर्ल्ड में गया, तो क्या मिला भारत को? नेम क्लेम तो मिला ही. 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मिली ना. स्पेस में भी जाने से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मिलेट्स में भी जाने से 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, और आयुर्वेदिक मेडिसिन से भी जाने से क्या होगी? 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी. और कौन आएगा वो? मैं अकेला नहीं, आप सब. नेक्स्ट प्लीज. ये देखिए आयुर्वेदा का ग्लोबल में पढ़ जाइए. Acceptance by the global governments in India, this rule in India, that rule abroad, Europe, USA, Australia, others, Africa, everyone is talking about this, right?
and if you see on that, what's going on? How many countries have accepted Ayurveda as a system of medicine? Any idea? Any idea? कितने देशों ने भारत को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दे दी है, और कितने देशों ने भारतीय आयुर्वेदिक औषधियों को एक औषधि के रूप में मान्यता दे दी है? How many countries have recognized Ayurveda medicine as a drug, as per the definition of drug, and how many countries have recognized Ayurvedic system of medicine as a medical system of medicine? इंडिया तो है ही है, और ढाई अंकों में है कि नहीं? 16 and 29. In 16 countries, medicines are recognized as a medicine, and mostly in Hungary, Germany, Latvia, and the same way 29 countries have recognized Ayurveda as a system of medicine. अब आप पूछिए, अब मैं साहब आपको ऐसे बताते चलो, अरे आप कुछ और देखिए सुनिए ना, कि आपको BMS की डिग्री लेकर के आप कहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं? BMS की डिग्री लेकर क्या आप आयुर्वेद के US में प्रैक्टिस कर सकते हैं? नो। बट BMS की डिग्री लेकर आप ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेलबॉर्न, सिडनी में कर सकते हैं, और चले जाइए वहाँ, और न्यूजीलैंड जाइए, वहाँ की तो गवर्नमेंट बुला रही है। अरे कितने गवर्नमेंट हैं जो बुला रहे हैं, लाखों लाखों रुपया दे रही है, आओ हमारे यहाँ रहो, बसो, हमारा सिटीजनशिप लो, हमारी पॉपुलेशन बढ़ाओ। उल्टा चल रहा है, वहाँ कोई रहने वाला नहीं है, गाँव के गाँव, बस्ती के बस्ती खाली है। सही बता रहा हूँ, ये कनाडा में भी है, फ्रांस में भी है, इटली में भी है। अब आपको इतनी हिम्मत चाहिए कि जाएं और रहें वहाँ, जाएंगे सीधे चांद पे जाएंगे रहने, वहीं जमीन में लीजिए अपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट पेज, ये पेपर्स पढ़ते जाइएगा। मेडिसिन इन मोशन, अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस इन डाटा एनालिटिक्स बेस्ड सॉल्यूशन फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इंटीग्रेशन इनटू वेस्टर्न मेडिकल प्रैक्टिस। हर कोई यही बात, everyone is talking on the same theme, same notion, same motion, same sentences, no difference. Ayurveda is not nowadays part of discardation. कोई आयुर्वेद इसमें डिस्कार्ड नहीं करता, हर किसी की लैंग्वेज यही है, जो इलाइट है, जो समझदार है। हाँ, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो कफन में भी पैसा ढूंढता है, भारी बोल गया क्या? हाँ, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनका कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो आयुर्वेद का विरोध करना है। वो एमएनसीज, जिनका फार्मा कंपनी कैंसर की दवा क्या ढूंढी नहीं जा चुकी है, बहुत पहले ढूंढी जा चुकी है, मार्केट में नहीं आने देना है। एक रात को बैठने हैं, 20 लेवल बढ़ा दिया, पूरी दुनिया डायबिटिक हो गई, तुरंत शुरू हुआ ना यही। सिनेरियो चेंज करने से मेटमॉर्फिन का बिजनेस हो गया। तो ये सब, अरे भाई उधर ही क्यों जा रहे हैं? यहाँ भी तो होता है, गंगा मैया तो है पेड़ चढ़ाई को, सूरत में सूती साड़ियों का स्टॉक बहुत ज़्यादा भर गया, नहीं बिक रहा है, तो एक पोस्ट कार्ड आता है, रात्रि में स्वप्न दिया गया कि आप इसे अपने भाई के यहाँ से, सामाजिक ताना बाना जोड़ा जाता है, बोला जाता है, भाई के यहाँ से पीली साड़ी, सूती साड़ी ले आइए और उसको गंगा मैया को चढ़ाइए, एक हफ्ते में सूरत का स्टॉक खत्म। भारतीय जनता पूरा साड़ी, सूरत की जितनी साड़ियाँ नहीं बिकी थी, खरीद करके गंगा जी को चढ़ा दी। तो ये बिजनेस स्टाइल है, जो कभी धर्म के नाम पर की जाती हैं, कभी खेल के नाम पर की जाती हैं, कभी डरा करके की जाती हैं। नमक नहीं मिलेगा, अरे मैंने खुद अपनी आँख से देखा है, लंका में नमक खरीदने 4-4 किलो लोग नमक खरीदे, आई हैव सीन। तो ये तरह से अफवाह उड़ाई जाती है। गणेश भगवान पता नहीं क्या कर रहे थे, कर रहे थे ना, क्या पी रहे थे? दूध पी रहे थे। ठीक है, तो मेडिसिन इन मोशन, ये आयुर्वेद इस समय हर जगह मान्यता प्राप्त, एवरीवेयर आयुर्वेद इज रिकॉग्नाइज्ड, राइट? नेक्स्ट प्लीज। क्या है यूनिक आयुर्वेद में ऐसा जो और लोगों के पास नहीं है? आप जानिए तो सही। हम अभी पूछे हैं, आपका क्या नाम है? पंकज। पंकज, आप में क्या यूनिक है? क्या पंकज है? सवाल ये है, what is unique with you that you are Pankaj and that is not with the Siddharth Nag and the Siddharth? अभी आज बात हो रही थी उसके गाइड से, तो गाइड वो अपने भतीजे में बिजी था, साइनेप्सिस रिव्यू कमेटी का हम लोग रिव्यू ले रहे थे कि कहाँ क्या कैसे हुआ। हाँ पंकज जी, आप में क्या यूनिक है? एक यूनिक चीज बताइए आपको कि आप उसकी वजह से आप हैं।
टफ सवाल है क्या? अच्छा चलिए इधर देखो। हाँ उधर लास्ट पोएम, व्हाई यू आर यू, योर गुड नेम शालिनी, अच्छा रागिनी, ठीक है। रागिनी जी आप कौन सा राग बताएंगे? मियां मल्हार, 5 रागों के नाम बताइए तो शास्त्री। कहाँ से हैं आप? जालौन उत्तर प्रदेश से। अच्छा बनारस में रहते हैं तो शास्त्री राम से राग का नाम तो बनारस का अखबार पढ़ने से राग का नाम याद होता है। सही बता रहा हूँ, आप बनारस के अखबारों को पढ़िए कि रोज कहाँ कहाँ क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, और उनमें बस न्यूज पढ़िए तो आपको कितने राग का नाम पता चलेगा। राइट, चलिए आप क्यों हैं रागिनी, आप क्यों हैं? चलिए छोड़िए। तो आयुर्वेद में क्या है ऐसा, वो ये देख लीजिए। On the basis of the doctrines, on the basis of the nature of the medicine, everything is natural. On the basis of the safety of medicine, on the basis of the efficacy of the medicine, on the basis of the regulations of medicine, everything is unique with us. Everything is unique with us. ये चीजें और जगहों पे नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि और जगहों पर हमसे बुरी हैं। माइंडेड, क्लियर इट। मैं ये कह रहा हूँ ये हमारे साथ है, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और जगहों पर हमसे खराब है। शायद मैं यही कह रहा हूँ कि और जगहों पर हमसे भी अच्छा है। राइट, फाइन। तो हमें इस रूप में चलना होगा कि हमें अपनी विशेषताओं को और ज़्यादा, यहाँ क्या लिखा हुआ G20 चल रहा है पॉलिसी पाई गई, टेक्सटाइल मेडिसिन से हो गया, गांधीनगर डिक्लेरेशन आई गया। यहाँ ये क्या है, इसका आप नाम याद कर लीजिए। और ये देखिए NABL एक्रेडिटेशन। कहीं भी आप लेबोरेटरी जांच कराते हैं, कहीं भी कराते हैं, उस लेबोरेटरी को अपनी प्रैक्टिस में आप उनका ज़्यादा जाके जो कि NABL से एक्रेडिटेड हों। और ये आयुर्वेदिक फार्माकोपिया के निर्माण की जिम्मेदार संस्था है PCISMH। हो सकता है कि आप में से कोई रेगुलर सर्च वाला यहाँ आगे जाकर एक असिस्टेंट डायरेक्टर बने, डिप्टी डायरेक्टर बने, डायरेक्टर बने। यहाँ की जो पोस्ट आती है उसमें लिखा रहता है BMS MD आयुर्वेद रसशास्त्र पब्लिक ड्रग रूम। स्पेसिफिकली यहाँ पर जो भी पोस्ट आती है इस कमीशन की, इन 2 ब्रांचेस को प्रेफरेंस दी जाती है। राइट, they are the responsible for the availability or the make the standard for the quality standards and the many things. हमारे डिपार्टमेंट के बच्चे इसमें हैं, काम कर रहे हैं। Yes, many students are there. Fine. Next please. Progressive panoramic. अब मुझे बड़ी खुशी हुई। इसको खुशी हमेशा ही होती रहती है आप लोगों को, मगर इंडियन एक्सप्रेस ने कल ये हेडिंग, मैं कहा वाह, मैंने बिल्कुल उल्टे हाथ से। इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल पेज पे हेडिंग है कल की, प्रोग्रेसिव पैनोरामिक। तो मुझे याद है ये हेडिंग मैं भी यूज़ करता हूँ अपने, मैंने उनसे पहले लिखी है, ठीक है ना, मेरा कॉपीराइट है, ठीक है, और बहुत पहले लिखी है प्रोग्रेसिव पैनोरामिक। फाइन, सो दिस इज आवर क्लासिकल डोजेज फॉर्म और कंटेम्परेरी डोजेज फॉर्म जो नया नया आपको निकाल रहे हैं। अब तेल का बॉक्स में आता है, तेल कैप्सूल में आने लगा है। अब हमारी टैबलेट जो है वो फ्लेवर को मास्क करके आ रही है, मतलब वी आर प्रोग्रेसिंग। एक्सेप्ट कोई इंजेक्शन हमारे पास अभी नहीं है। न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये अभी हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, लंबी कहानी है, वक्त नहीं है आज बताने का, इसलिए छोड़ रहा हूँ। इनको आप पहचानते ही हैं, क्या चाहिए आपको? नेक्स्ट 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 आयुर्वेदा, जल्दी से पढ़ लीजिए। गो थ्रू द स्कीम। कमीशन हो, हाँ NCIS में कमीशन हो, कमीशन है ना, हाँ नेशनल काउंसिल में नेशनल कमीशन है। गुड, ये यहाँ चेंज कर रहा हूँ। नेशनल कमीशन आयोग है, परिषद नहीं है। नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCIS, स्टैंडर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, स्टैंडर्ड ऑफ न्यूक्लियर, स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, स्टैंडर्ड ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन, स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्चर, ग्लोबल एक्सेप्टेंस एज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये सब पे जब हम लोग काम कर जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक, ये क्या लिखो और इनको जरा पढ़ लीजिएगा। SCO वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, शंघाई कॉर्पोरेशन,
हर जगह everyone everything is talking about what? Ayurveda. Next please. एडवांस कंजर्वेटिव आयुर्वेदा, ये सारे रूल्स और वो जो आयुर्वेदिक आहार आया है, आप जानते हैं इसके बारे में? आयुर्वेदिक आहार कितने लोगों ने सुना इसके बारे में? 5 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन हुआ है। बहुत बड़ा मार्केट है। स्वास्थ्य मित्र कोई है यहाँ पे? आप भी हैं? जैसे चार्टर को डिसाइड हो गया हो, सब हो गया हो, क्या चिंता वाला भी होगा? आयुर्वेद आहार पर काम करो, शल्य वालों को छोड़ दो। वो वहाँ कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आयुर्वेद आहार और शल्य का कोई कनेक्शन बैठ रहा है। तो ऐसे कल्पना से बनता है, रसायन से बनता है। तो आयुर्वेद आहार का नोटिफिकेशन देख लेना, बहुत ही अच्छा है। 12 पेज का तो बात है। आयुर्वेदिक आहार का एक हर भाषा में अलग अलग सिंबल में रिलीज हुआ है, उस गजट को देखिए। और इसको फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया पर कई सारे बहुत काम की चीज़ें हैं जो आपकी प्रैक्टिस में काम आएंगी। काय चिकित्सा, स्वास्थ्य सर्विस, प्रसूति, बाल रोग, नो मैटर, आप एफएसएसआई पे जाइए और देखिएगा हाउ दे आर वर्किंग ऑन द डाइट। दे हैव पब्लिश्ड पिंक बुक, दे हैव पब्लिश्ड ऑरेंज बुक, दे हैव पब्लिश्ड वायलेट बुक, दे हैव पब्लिश्ड पर्पल बुक, मेनी थिंग्स आर देयर। और आपको उनको डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए, और पिंक बुक तो जरूर पढ़ना चाहिए। और लड़कों को स्पेशली, क्योंकि उसमें खाना बनाने का टाइम दिया। ऑरेंज बुक, येलो बुक, पर्पल बुक अलग है। वो कैंपस में क्या खाना है, डिजीज कंडीशन में क्या खाना है, कार्डियक डिसऑर्डर में क्या खाना है, हाँ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या खाना है, ये सब किताबों में आ चुका है। पब्लिश बाय नॉट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, पब्लिश बाय, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का एक पार्ट है। फाइन, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे एक बनने वाला है, कोलैबोरेशन करना पड़ेगा किसके साथ? फार्मास्यूटिकल। हाँ बैठो, एलोपैथिक फार्मास्यूटिकल ब्रांड, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और इन लोगों से तो बहुत ज्यादा, ये 3 के नीचे वाले हैं। क्या लिखा हुआ है? प्लीज बी कम। ये क्या? HAV USC through integrative value based healthcare आयुष मिनिस्ट्री, यूनिवर्सल हेल्थ केयर। यहाँ क्या है, आप जो नौकरी की बात करते हैं, तो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट ग्रेड में अब आयुष के लोग जाएंगे। ये अभी इस सरकार ने किया, इससे पहले नहीं था। जो भी PHS पब्लिक हेल्थ का सिस्टम है, अब तक आप सिर्फ मेडिकल ऑफिसर या कम्युनिटी मेडिकल ऑफिसर होते, इसमें आप नहीं थे आयुर्वेद के लोग। बट दिस गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड that now this is the use of the health economic tax. Ayush professionals are now in the public health management category, right? तो ये आपको पता ही नहीं होता है, वैकेंसी आती है आप देखते नहीं हैं, आप भरते नहीं, आपको तो बस दिखाई देता है कि हमका रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी आएगी, CCRS की, मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आएगी, स्टेट की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी। इसके अलावा भी कहीं और अपॉर्चुनिटीज हैं। MDRI में आती है वैकेंसी मालूम, CSIR में आती है वैकेंसी मालूम है, वहाँ BMS लोग हैं, MDRI लोग हैं, MDRI में सीनियर में। Do you know? People are working, even people are working in the IIJT with the Ayurvedic qualification, Institute of Integrative Biology, Molecular Biology. There are no person with the qualification of MD Ayurveda. मगर आप जानेंगे तब ना अप्लाई करेंगे। तो ये ओरिएंटेशन का है लेक्चर, इसलिए आपको ओरिएंट किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत में क्या चल रहा है? अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत काल। अमृत काल में क्या क्या होना चाहिए? ये सब होना चाहिए, फिर पढ़ जाइए। Go through it please. Advanced NCIS curriculum is going on. अब BHU तो ये भी करने जा रही है। अभी हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने स्टेप किया है कि जो NCIS का सिलेबस जो था उसमें 25% ऐड करेंगे BHU, UG में भी और PG में भी। खाली वो 4 पेज का सिलेबस से अब काम नहीं चलेगा। UG में भी 25% ऐड होने जा रहा है NCIS के सिलेबस के अलावा, और PG में भी, क्योंकि हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर IITians हैं, उनका ये कहना है कि वो जो कोर सिलेबस है इंडिया में, व्हाट BHU इज एडिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ BHU,
तो NCSM ये नहीं कहती कि इतना अधिक मत पढ़ाओ, ये कहती है कि इतना जरूर पढ़ाओ। तो इसके अलावा आज ही डिपार्टमेंट में हम लोग को सबको नोटिस आ गई है कि 25% और अधिक क्या पढ़ाया जाए आपको यूजी में भी और पीजी में। ठीक है, मिश्रा जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। ठीक, तो 25% आपको ज़्यादा पढ़ना है और वो इम्तिहान में पूछा जाएगा। इस बार ही मुश्किल से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया तो एग्जाम्स हो रहे हैं यूजी वाले, बिकॉज ही इज एडमिट कहीं आपको नया आप बनाइए जिसमें आप NCSM के सिलेबस पर 25% ऐड करें। एनीहाउ, अफर्मेटिव assured amendments, central state policy, draft material, Ayush medicine, Ayurvedic intervention और assertive amendments in central state policies of the health sector। और सबसे बड़ा अमेंडमेंट कहाँ चाहिए? सबसे बड़ा अमेंडमेंट कहाँ चाहिए? किसके? किसके? प्रीजुडिस। वो प्रीजुडिस आप ही, खाली वो नहीं जो आयुर्वेद की बुराई करते, वो प्रीजुडिस आप ही। आप अपने महत्व को नहीं पहचानते, आप अपनी क्षमता को नहीं पहचानते। यू डोंट रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल, यू डोंट रिकॉग्नाइज योर वैल्यू एंड वर्थ, so you are also prejudiced. You must believe in yourself first, and then there will be Amrit Kaal. Next please. ये देखिए, पब्लिकेशन पे जाना बहुत जरूरी है अकेडमी में, बहुत जाना जरूरी है। और ये दोनों पेपर हमारे डिपार्टमेंट में, by the way, this is the coincidence. One author is very much here, Dr. Guru Prasad Dave. This paper in the IITS study, effect of an Ayurveda treatment in palmoplantar psoriasis. That is the paper on the honey by the Dr. Rohit Sharma. So you have to go through the publications also. Then it is the meaning to be in the Banaras University. And publication is लंका में छपने वाले publications नहीं, ये वाले indexed, high reputed journals. Fine. Next please. Yes. इसको आप खुद पढ़िए. Global Ayush concept is the real pillar of mass medical Bharat. The Ayush answer of health sector on account of physical, mental, social, and spiritual need of global citizen. Global citizen, right? And we shall achieve this in Amrit Kaal when you scholastic Ayurvedists will be in the global network of Ayush. Remember, dear friends, I started with that you are not here for the 3-year PG program. You are here for the global network of, and that global network is waiting for you. Really, believe it. That global network is waiting for you. World is demanding their treatment, their wellness through Ayurveda. This is we who have to answer. If we fail, then no. And that is the orientation of this 1 hour for you all. And apart from this fundamentals, come to the medicines also, come to the publications also. आप अगर अपनी क्लिनिक को बहुत बड़ी बड़ी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी डाइट आपने बना ली है, लेकिन अगर वो पब्लिश नहीं कर रहा है, क्या राइट? नेक्स्ट प्लीज. Acknowledgement and thanks. चलते चलते you all MDMS first year junior residents at faculty of Ayurveda IIMS बनारस यूनिवर्सिटी, जो यहाँ हैं उनको धन्यवाद. जो नहीं है सूक्ष्म रूप में यहाँ है, शायद शरीर नहीं है, मन आत्मा की होगी किसी न किसी के साथ, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. हाँ, कि उन तक ये बात पहुँचे. देखिए, मंडे ज्ञान आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की साइट पर, आप उसको देखते चलिए, आपका नॉलेज अपने आप इतने सारे MCQ आप कर देंगे जिसका कि, और आज मंडे है ना, क्या है आज? और यहाँ क्या लिखा हुआ है? मंडे ज्ञान. मंडे ज्ञान देख रहा हूँ ना लाल से, तो और कुछ मत देखो, अगर तू तो देखो ही देखो साथ में मंडे. नहीं वो एक और आ गई है, कौन सी आई है? वो नहीं वो तो उसको कर जाते हैं. बट ब्रेक जो आपको एक में क्या आता है, मतलब हमको सीधा उनको अब भी कुछ एक नया है. हाँ वही ठीक. वो मंडे ज्ञान, तो मंडे ज्ञान में आप देखिए
मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइट पर जाइए, मंडे की आपकी लिस्ट जाती है, ये दिया हुआ है कि कितने कंट्रीज में कहाँ कहाँ क्या क्या है, ठीक। और ये तो हमारा डिपार्टमेंट है। 2012 में जब कन्विंस हुआ था, हमने कहा कि इस प्रांगण में आपका स्वागत कर दिया जाए। और ये क्या है भाई, नोट कर लो, नेशनल हेल्थ पोर्टल है, इस पर जाओ और अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, सबके पास BMS डिग्री है। ये अब खुला है, ये इस समय की NCISL ने काम कराया है। स्पेशली थैंक्स टू द वैद्य राकेश शर्मा जी, डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन, वो डिड इट। अब आप आयुष्मान भारत पर अपना अगर आप यहाँ रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो जो भी हेल्थ स्कीम्स हैं और जो गवर्नमेंट के, जिसको लोग जनरली मान के चलते हैं कि आयुर्वेद वाले अथराइज नहीं है, जनरली मान के चलते हैं कि नहीं आयुर्वेद वालों का सर्टिफिकेट नहीं मानते, तो गलत है। आयुर्वेद के व्यक्ति के द्वारा दिया हुआ हर सर्टिफिकेट मान्य है। वो तो कलरकों की, हाँ चलिए, सब मिनिस्ट्रियल स्टाफ का ये माइंडसेट है जो बिना जाने मुझे देखे ही कह देते हैं नहीं आयुर्वेद वाला है ना, नहीं मान्य होगा। ऐसा नहीं, आप चैलेंज करिए, आपकी ड्यूटी। और NHP पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आयुष्मान अभी BMS को ले रहा है। नेशनल हेल्थ पोर्टल पर जो भी अपनी आप क्लिनिक खोलना चाहते हो, जो जहाँ इवन आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको जॉब होगी, आप अगर यहाँ पर एज चिकित्सक रजिस्टर्ड होंगे तो आप आयुष्मान भारत का रिइंबर्समेंट करा सकते हैं, राइट। ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। NHP पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। अब वो शुरू हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ पर एक YouTube चैनल है जहाँ पर ये लेक्चर भी जाएगा। एनालिटिका आयुर्वेद, जो भी मैंने आपसे सवाल पूछे हैं सबका उत्तर यहाँ है, बस आप देखिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए, ठीक। एंड द नेक्स्ट, हाँ जान लो भाई कौन कौन लोग हैं भाई, पहचान में नहीं आ रहे हैं, ये कौन है लोग? आप कौन है डॉक्टर? क्या लिखा हुआ है ऊपर? ये वंदते भगवान, आपकी सफलता के लिए बधाइयाँ, शुभकामनाएं। Then good luck and remember the sky is the thank you everyone for you all। और धीरे से बहुत क्लैप करेंगे। She wanted to clap, तो उसने कैसे कर दिया। तो this is हम लोग फिर मिलते रहेंगे और निश्चित रूप से आपको ग्लोबल आयुष नेटवर्क में आना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, नॉट फॉर द PG डिग्री, नॉट फॉर द सर्विस, ये तो जरूरी है, ये तो आएगा ही, लेकिन आपको अपनी पहचान कहाँ बनानी है? ग्लोबल आयुष नेटवर्क। और मैंने अपने साथी को बुलाया, डॉक्टर गुरु प्रसाद को, आपके उत्साहवर्धन के लिए। आइए आप इधर आ जाइए। मैंने उनको कहा था कि आप आइएगा क्लास में, और अभी बताता हूँ तब ताली बजाओ। अभी पुणे में नर्सास की कॉन्फ्रेंस हुई 27 अगस्त 26-27, और वहाँ पर इनको जो इनका थीम है, इनके प्रेजेंटेशन पर इनको टीचर्स कैटेगरी में सेकंड प्राइज मिला, और फर्स्ट प्राइज वहीं के पुणे के किसी को दिया, लेकिन ही स्पोक देयर। और ये क्लास इनकी थी, आज की थी, ये तैयार होकर के लेने आ गए थे। मैंने कहा कि भाई अब तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ले लूँ, तो मैंने कहा मैं आपको क्लास में बुलाऊंगा। दिस इज टीम है। मुझे नहीं पता था कि, मैं जानता तो था कि मंडे को आ जाएंगे, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि एकदम भागे भागे क्लास लेने आएंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने डॉक्टर लक्ष्मी को मैसेज कर दिया कि नॉट टू वरी, ही इज आई एम इन द क्लास। लेकिन ये पढ़े नहीं थे, आ गए, तो मैंने कहा बिल्कुल आइए। एक ये भी डेडिकेशन है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है। इनको आप जानते ही होंगे, डॉक्टर गुरु प्रसाद जी असिस्टेंट प्रोफेसर, और ये इनका पेपर आपने देखा है, बहुत अच्छे फिजिशियन है, बहुत अच्छे टेक्नीशियन है। और आज ही डिक्लेयर कर दूँ क्या? कर देता हूँ। इनकी PhD थीसिस का रिजल्ट का इंतजार करिएगा, गेम चेंजर होगी पूरे आयुर्वेद में। डॉक्टर अंशु ये PhD स्कॉलर है ज्योग्राफी से, ये आयुर्वेदिस्ट नहीं है। सी इज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, एंड सी इज वर्किंग ऑन द आयुर्वेदा वेलनेस एंड द टूरिज्म। तो अलग अलग काम करना चाहिए, जिसको मैंने अभी डॉक्टर अंजू बोल दिया ना, इसका मतलब इसको PhD मिल जाएगी। ठीक, ओके, थैंक यू एवरीवन। सर